मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथोलॉजिकल. इन दिस सेशन we'll be doing a quantitative reasoning puzzle set from IPMAT 2023 एग्जामिनेशन. स्टार्ट करते हैं सेशन को. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू चैनल तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है. साथ में ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो दिस इज द पजल फ्रॉम IPMAT 2023 एंड these are the 5 questions. तो पॉज करके पहले सॉल्व एट योर एंड, देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन. दिस इज अ वेरी इजी पजल सेट, तो डेफिनेटली हो जाना चाहिए. A pharmaceutical company has tested 5 drugs on 3 different organisms. There are 5 drugs A, B, C, D, and E, and 3 different organisms P, Q, and R. The following incomplete table reports if a drug works on the given organism. For example, drug A works on organism R, while B and C work on Q. ठीक है, जहाँ पे टिक मार्क है यानी कि those drugs are working for that particular organism. तो drug A is working on organism R, and drug B is working on organism Q, and drug C is also working on organism Q. Then additional information available that each drug works on at least one organism but not more than 2 organisms. Each drug works on at least one and maximum 2. So every drug is working on at least 1 to 2 organism पे work कर रहा है. Similarly, each organism can be treated with at least 2 and at most 3 of these 5 drugs. So for each organism, there are at least 2 drugs, maximum 3 drugs. 2 to 3 drugs are there which are working on an organism. On whichever organism A is working, B is also working. ठीक है. So if A is working on certain organism, then B will also be working on that organism, but not vice versa. इस बात का मतलब है A वर्क कर रहा है तो B वर्क करेगा, but if B is working, that does not necessarily mean कि A भी वर्क करेगा. ठीक है. बट इफ A is working, this is unidirectional, यानी कि A वर्क कर रहा है तो B डेफिनेटली वर्क करेगा. Similarly, if C is working on some organism, तो D will also be working. Again, not vice versa. If C is working, D is also working, but if D is working, we cannot say for sure कि C भी वर्क करेगा. Also, D and D do not work on the same organism. तो डी जिस पे वर्क करेगा उस पर ई वर्क नहीं करेगा, जिस पे ई वर्क करेगा उस पर डी वर्क नहीं करेगा. तो डी और ई का आपस में नहीं बनते. तो डी एंड डी आर नॉट वर्किंग ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म. अब जो ऑलरेडी डेटा गिवन है उस पर हम कितना यूज कर सकते हैं यहाँ से. तो सिंस ऑन ऑर्गेनिज्म आर ए इज वर्किंग, तो बी विल ऑल्सो बी वर्किंग. क्यू के लिए नहीं कह सकते क्योंकि बी वर्क कर रहा है. नॉट श्योर कि ए करेगा नहीं करेगा, नहीं कह सकते. बट हाँ, आर के लिए फॉर श्योर कह सकते थे. सिमिलरली ऑन ऑर्गेनिज्म क्यू, ड्रग सी इज वर्किंग, तो डी मस्ट ऑल्सो बी वर्किंग. एंड सिंस ऑन एनी ऑर्गेनिज्म minimum 2 and maximum 3 drugs can be working. So on organism Q हमारे पास 3 drugs already हमें मिल गया है. So A will not be working, E will not be working. Okay. And any drug can work on maximum 2 organisms. So drug B is already working on Q and R. So B will not be working for P for short. और अगर ड्रग बी वर्क नहीं कर रहा है ऑन ए ऑर्गेनिज्म तो ए भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज अगर ए वर्क करता तो बी जरूर वर्क करता. एंड हेंस इफ बी इज नॉट वर्किंग ऑन एन ऑर्गेनिज्म देन फॉर श्योर ए इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. ठीक है. तो बेसिकली जैसे हमने स्टेटमेंट लिखा कि ए इज वर्किंग देन बी इज ऑल्सो वर्किंग, दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि इफ बी इज नॉट वर्किंग देन ए इज ऑल्सो नॉट वर्किंग. Similarly, if C is working, D is also working. That also implies that if D is not working, then C will also not be working. Okay, क्लियर है बात. ठीक है. तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं कि इन केस हमें बात करनी है अब ऑर्गेनिज्म पी पे देखते हैं, बिकॉज पी पे भी हमारे पास एटलीस्ट 2 ड्रग्स विल बी वर्किंग, मैक्सिमम 3 ड्रग्स कैन बी वर्किंग. सो फॉर ऑर्गेनिज्म पी अगर हम ड्रग सी को वर्क ना कराएं तो डी वर्क नहीं डी तो वर्क कर सकता है. बट अगर ड्रग सी को वर्क ना कराएं तो क्या पॉसिबल है कि 2 ड्रग्स हो पाए. Is it possible that if drug C is not working for organism P, can still be there 2 drugs? Because then D and E both have to work, but both cannot work simultaneously. And hence, for sure, drug C must be working. क्योंकि उसमें assumption लिया उसके बाद हमारे पास हमें 2 drugs नहीं मिल पा रहा है. Because D and E will not be working together. So for sure, drug C must be working for organism P. और अगर C वर्क कर रहा है तो फिर D भी डेफिनेटली वर्क करेगा, और अगर D वर्क कर रहा है तो फिर E डेफिनेटली नहीं वर्क करेगा. And since E is not working for organism P, neither working for organism Q, और at least one organism पे तो वर्क करना ही करना है, so E must be working for organism R. And if E is working for organism R, तो हमारे पास 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया. So C and D will not be working. So complete टेबल हमारी फिलअप हो गई. क्या ये क्लियर है? ठीक है. सो नाउ क्वेश्चंस. और डेफिनेटली बहुत सिंपल पजल था ये. 5 क्वेश्चंस केक वॉक थे. तो एग्जाम में ऐसे पजल्स को तो कतई नहीं छोड़ना है. और पजल्स डेफिनेटली वैसे भी नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि देर आर 4 or 5 क्वेश्चंस, मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर वन पजल. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम लगता भी है. सो यू विल बी गेटिंग ऑल सॉर्टेड अनलेस देयर इज अ कंडीशनल पजल जहाँ पे कि हर एक क्वेश्चन में एक सेपरेट कंडीशन हो ताकि उसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़े. सो दिस इज नॉट वन सच पजल. तो डेफिनेटली ऐसे पजल्स को हमेशा हैंडल करने की कोशिश करनी है. ड्रग ई वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. ड्रग ई इज वर्किंग ऑन ओनली आर.
ऑप्शन डी इज द ऑप्शन आंसर. नेक्स्ट वन, ड्रग डी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग. डी वर्क कर रहा है हमारा इन पी एंड क्यू. ऑप्शन ए, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी ट्रीटेड विद 3 of these drugs. So Q में there are 3 drugs which are working, and for R also there are 3 drugs which are working. So Q and R. Option D. Fourth one, organism R can be treated with. So R can be treated with A, B, and E. And last question, organism P can be treated with C and D. So these are all the 5 questions for this puzzle, and this was a very easy puzzle, very doable puzzle. कमेंट में मेंशन करना कि तुमने अपने पे कर पाए थे या कहीं पे कोई गलती किया. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. एंड अगर सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से करना है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.